اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ہم لیسن 7th ڈے آج ہمارا، تو تقریباً 7 نمبر ایک اسلام میں ہے نا کہ خاص نمبر، تو آج 7ویں نمبر پہ پہنچ گئے اور ہمیں کچھ ورڈز کا بھی پتہ چل گیا۔ دیکھیں ووکیبلری کاؤنٹ میں نے نیچے لکھا ہوا ہے، تو اس سے پتہ چلے گا ہم نے کتنے ورڈ سیکھ لیں۔ سیکھا تو ایک ہی ورڈ ہے لیکن اس کی ڈفرینٹ فارم سیکھ لی ہم نے۔ مسلمون پہ ہی لگے ہوئے ہیں ابھی تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کیا سیکھا ہے آپ نے عربی میں، تو آپ کہیں گے جیسا مسلمون، مسلمان، مسلمین، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، وہ یہی سیکھا ابھی۔ تو وہ کہیں گے ابھی تم تو یہ کیا سیکھا ہے تم لوگوں نے؟ تو آپ نے یہ ہے کہ ابھی آہستہ آہستہ چلیں گے ہم، لیکن جو چیز آپ سیکھیں نا اس کو سمجھ لیں، کیونکہ یہ بیس بنانا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر جو ہے نا وہ آگے چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ اگر ہم فاسٹ چلیں گے یا قرآن کریم کا سیدھا ہم نے ترجمہ کرنا شروع کر دیں گے نا، تو پھر وہ مشکل سے چیزیں آئیں گی۔ اس طرح جب چیزیں یاد، اس طرح سے بیسک ہمیں بلڈنگ بلاکس اچھی طرح ہمیں کانسیپٹ سمجھ آ جائے گا، تو پھر ہم جب قرآن کی آیات کی طرف جائیں گے نا، تو پھر آپ کو اس کا تو صحیح سمجھ آنے لگ جائے گی۔ کیونکہ ادروائز کیا ہوگا کہ صرف ہم رٹا ہی لگا رہے ہوں گے ترجمے کا، اور وہ ہم اس کو خود سے نہیں کر سکیں گے اگر کوئی ڈفرینٹ آ گئی تو مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو بس یاد کر لینا ہے ترجمے کو رٹا لگا کے، بلکہ ہم نے سمجھنا ہے کہ ہمیں اگر ورڈ وہ دوبارہ بھی کہیں آتا ہے کسی اور فارم میں، تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کیا ہے اور ہم اس کا میننگ بھی بنا سکیں۔ فائدہ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ہمیں ایک کا پتہ ہے کہ مسلمون اور ہمیں چارٹ پورا آتا ہے، تو ہمیں کوئی اور ورڈ بھی ہوگا تو ہم کیا اس کے پلورل کا بھی ہمیں پتہ چل جائے گا، اس کے ڈوئل کا بھی پتہ چل جائے گا، اور ڈوئل اگر یوز ہوا ہے تو اس کا میننگ بھی پتہ چل جائے گا۔ تو صرف ہمیں ایک ورڈ کی میننگ یاد رکھنے سے پورا چارٹ یاد ہو گیا، یعنی کہ 36 ورڈز ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا فرق ہے ان میں اور کیا میننگ میں کیا کیا فرق ہے، صرف ایک ہم نے مسلم و نبی یاد کیا ہے۔ تو آج ہم نے پریکٹس کرنی ہے، تو پہلے ہم پریکٹس کریں گے چارٹس کی۔ تو مجھے والنٹیئر چاہیے کوئی جو بتائے، ہم 5 ورڈز ہیں تو باری باری ایک ایک کرنا ہے۔ تو 5 میں سے کون سب سے پہلے کرے گا مومناتن کا چارٹ؟ مومنتن، 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 صحیح ہے نا؟ ہاں جی ٹھیک ہے۔ مومتانی، مومنہ تانی، نا ادھر تک ہاں سیم رہے گا، ٹھیک ہے، یہ ہمیں سیم رہنا ہے۔ اچھا، مومنتانی، مومنتینی، مومنتینی، ہاں مومنتینی، مومنتینی، اور مومناتن، مومناتن، مومناتن۔ ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ، بہت بہت اچھا ہے۔ سیکنڈ ہے منافقن۔ اب کون اس کو کرے گا؟ اب میں کر دیتا ہوں۔ چل، منافقن، 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 منافقانو، منافقانی، ہاں جی، منافقینی، منافقینی، منافقانی، منافقونا، ہاں جی، کونا لگانا، منافقینا۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ نیکسٹ قادرن۔ میں بولوں؟ ہاں جی، قادرن، قادرن، قادرین، قادرانی، قادرینی، قادرینا، نہیں قادرینی دونوں دفعہ سیم میں ہوگا۔ جی قادرین، ٹھیک ہے، ہاں قادرینی، قادرینی، قادرونا، قادرین، ہاں قادرینی، ہاں جی ٹھیک ہے، قادرینی، 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 قادرونا، قادرینا، قادرینا۔ ہاں جی ماشاء اللہ جی۔ ناصرون۔ میں ٹرائی کروں۔ ہاں جی، ناصرون، ناصرن، ناصرین،
थर्ड वाला क्या है, जर वाला? नासिरुन, नासिरन, नासिरीन। दो लोग कर रहे हैं मेरा ख्याल है, वो पहले एक कर लें फिर दूसरा। हाँ ठीक है, आप कर लो, जो भी आप कर लें, आप कर लें। नासिरुन, नासिरन, नासिरिन, नासिरानी, नासिरैनी, नासिरैनी, नासिरूना, नासिरीना और नासिरीन। हाँ जी, माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब ये मैं ट्राई करती हूँ इंशाल्लाह। मुअल्लिमतुन, मुअल्लिमति, मुअल्लिमतन, मुअल्लिमतिन, मुअल्लिमातुन, नहीं वो तो वन। मुअल्लिमताने, हाँ जी, मुअल्लिमतैनी, मुअल्लिमतैनी, मुअल्लिमातुना, नहीं मुअल्लिमाती। नहीं, जब फेमिनिन होगा ना तो इसका ऊना नहीं है, इसका फिर क्या करना होता है हमने, आतुन, आतुन लगाएंगे ना, मतलब मुअल्लिमातुन। हाँ जी। ओके, मुअल्लिमातुन, मुअल्लिमातीनी, मुअल्लिमातीनी। नहीं नहीं नहीं, मुअल्लिमात वो जो है ना वो मुजक्कर का है, क्योंकि ये मुअन्नस है ना, इसमें तुन लगा हुआ है एंड पे अच्छा, तो इसमें आपने आतुन की तरह करना है। जो 3R वाली, जो 3 वाली लाइन है ना, 3R। मुअल्लिमातुन, हाँ जी, मुअल्लिमातुन, मुअल्लिमातुन, मुअल्लिमातुन। हाँ जी, मुअल्लिमातीन, हाँ जी, मुअल्लिमातीन। हाँ जी, गुड, माशाल्लाह। आतिन, आतिन। तो हमारे, हमने क्या किया, हमें अब अगर हम दोबारा देखें, मैं आपको साउंड्स हम अगर देखें हमने कैसे हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है सिंगुलर, वन, राइट। सो रफा के लिए क्या क्या करना होता है हमने, वन रफा के लिए कौन सी साउंड्स हैं, दो पेश आ सकती है या एक पे एंड। तुम या तू। हाँ जी, राइट। और 2R के लिए क्या होता है, आनी तानी, लगाते हैं, तानी, आनी, हाँ जी, आनी का एडिशन आनी। करते हैं ना, आनी। तो आनी, इसमें ये देखना है ना हमने, आनी तो नून के नीचे तो जेर है, लेकिन इसको हमने जर नहीं कहना है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है आनी, तो आनी रफा ही है। तो इसको जब आप देखें ना आनी का कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन हमने पहले देखना होता है ना, जेर तो हम बाद में देखते हैं, पहले हमने देखना था कॉम्बिनेशन तो नहीं, ठीक है ना। आनी हो गया। अब 3R का क्या था, ऊना, ऊना। ऊना, ऊना। तो ये हो गया हमारे रफा तीनों। इसी तरह इसके अब नसब क्या था, 1R, अन तन, की साउंड और, तन, तन या ता। तन, हाँ जी, अन की साउंड तन, और आ की साउंड। ता ना लगाएं साथ, क्योंकि वो फिर मैस्कुलिन भी तो हो सकता है ना, ता हमेशा नहीं होगा, हाँ, अन या आ। आ, आ, और हाँ जी, तो ये 2, एक्चुअली ये 1 नसब था, होगा या आई होगा? हाँ जी। और सेकंड में क्या होगा, 2 नसब में, आईनी। आईनी, आईनी, आईनी। आईनी, होगा, आई। आईनी, ठीक है ना, आईनी होगा, हमेशा आईनी ही होगा, चाहे आप मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, दोनों में एक ही रूल है। और 3 नसब में क्या होगा, आईनी, आईनी, आईनी या जबर के साथ या जबर के साथ आईना, आईनी। हाँ, नहीं, ऊना, आनी, आनी। आनी, आन, नहीं आनी तो ये था ना, ये तो आनी नहीं है, ये ईनी, जबर के ईनी, साथ होगा ईनी ना, आएगा। हाँ, ईनी, ईनी। ईना। ईना होगा, ईना, हाँ, ओके। जबर है ना, पहले जबर जबर, जेर है फिर जेर जबर है, हाँ, यहाँ पे जबर जेर है 2N में, ऊना, यहाँ पे 3 ईना, में। ओके। और जब हम जर में करते हैं तो ईना, ईन, इन, पहले 1 में क्या होता है, इन, जेर, इन, इन, इन और इन या ई, ई, और ई, इसमें ये ई। सेम है, ठीक है। आईनी। 2 जर भी सेम है, जैसे 2 ऐनी, और 3 जर ईना, क्या होगा, ईना। ईना। तो जब भी आपने देखना है ना, अगर अगर तो एंड पे कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है ना, तो तब आपने कॉम्बिनेशन देख के आपने जर या नसब या रफा कहना है।
आपने उसकी सिर्फ एंडिंग साउंड नहीं देखनी, क्योंकि अदरवाइज आप इसको कहेंगे कि ये नसब है क्योंकि जबर आ रहा है इसमें, आ की साउंड है ईना, लेकिन उसमें कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन हमने पहले देखना है। और इसी तरह जो 3 वुमेन का था उसमें क्या था डिफरेंस, 3 रफा लेडीज साइड पे, आतिन आतुन आतिन 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 आतुन और आतन आतन नहीं, आतन तो होता ही नहीं है। हाँ जी, हाँ, आतन होता ही नहीं है, आतुन आतन आतिन और आतिन आतिन। आतिन रफा आतुन आतिन आतिन आतन, तो ये वाला रॉन्ग है, ये नहीं होगा, ये नहीं आतन होगा। नहीं होगा। नहीं और इसी तरह 3 जर आतन, तो ये हमने कॉम्बिनेशन है हमारे, ये हमने याद रखने हैं। तो इसी तरह हमें जब भी हमने रिकॉग्नाइज करना है ना, तो हमने कॉम्बिनेशन पहले देखना है कि कॉम्बिनेशन तो नहीं है, फिर अगर कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन से डिसाइड करना है, अदरवाइज हमने उसकी साउंड से डिसाइड करना है। तो अभी एक और एक्सरसाइज करते हैं। अब हमने सिंगल वर्ड को करना बस है। कर तो अब हमने सिंगल वर्ड होगा उसको रिकॉग्नाइज करना है। जिदारन, ये आपने इसका नंबर भी बताना है कितने को रिप्रेजेंट करता है और स्टेटस क्या है, क्या है ये। नसब वाहिद नसब हाँ जी, वाहिद तो नसब है, वन नस्ब, नसब है, वन नस्ब। नेक्स्ट है वजहू, वजहू रफा रफा वाहिद रफा रफा है, वन रफा, ठीक है ना, वन है और रफा। तो ये साउंड से हमें पता चली दोनों। अव्वालीना, ये अव्वलीन जर है ये, या वो भी हो सकता है, नसब भी हो सकता है, हाँ जर जी, तो इस टाइम पे हमने हाँ। दोनों कहने हैं। और नंबर दोनों क्या है कहने ये, किसके लिए है ये, 1 2 थर्ड के 3। थर्ड के लिए अव्वलीना नसब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है। मुफसिदूना, ये रफा ये रफा रफा जमा रफा 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 पूरा सेकंड के लिए जमा का है जमा ये, रफा हाँ सफ जमा जमा के रफ लिए। 3 आर, हाँ जी, 3 3 आर प्लस आर। आर रफा होगा ना, ऊना, ऊना की साउंड सिर्फ रफा में आती है, हाँ और हाँ 3 प्लस। मुस्लिमूना हाँ जी, मुस्लिम। रॉलिमीना, ये ये रफा नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता जर भी हो सकता है, और ये नंबर 2 का है शायद, नंबर 2 है, हाँ। नहीं 3 का है 3 है, ये अच्छा 3 हाँ प्लस हाँ है 3 मुस्लिमीना, ठीक है ना, मुस्लिमीना से हाँ उसकी हाँ, साउंड में ये आता है जेर नहीं है, मीना। जबर है ना, हाँ सही मुस्लिमीना। जन्नतानी, ये हाँ ये तस्नीया। आपका हाँ ये सेकंड का है, और ये नसब जर दोनों, नसब हाँ दोनों हो सकता है ना, नसब और जर। नसब या जर हाँ। 2 आर है। मतलब यार, अगर आपने चार्ट करे मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, तो किससे साउंड कर रहे मुस्लिमानी मुस्लिमान हैं, आनी की तरह 2 है आर ना। तो आनी क्या होता है, रफा होता रफा है, रफा आनी जी से, हाँ। कलिमातिन, ये जर है, जमा है 3 प्लस हाँ ये 3 है 3 की, हाँ और जर है, और भी तो हो सकता है ना, और जर और ये नसब जर और नसब, नसब और जमा का है दोनों हो सकता है। हाँ जी, दोनों हो सकता है। कलिमातिन, जन्नतैनी, तैनी ये नंबर, नसब ये है नसब है, और नंबर या 2 का जर है, है और तस्निया है हाँ जो का, हाँ जी। जर या वर्दतन, मेरे को सुनाई नहीं दिया। वर्दतन, वाहिद वाहिद है ना, और मुअन्नस मुस्लिम, हाँ ये मुअन्नस तो है लेकिन कितना है, रफा रफा है ये ना? रफ ये है, ये नसब रफा है, नसब रफा नसब, और हाँ तन तन है ना, हाँ तन है ना, हाँ उनकी सही है, साउंड, हाँ, नसब है, ये तो साउंड है ना, तो अन की साउंड नसब। हाँ अल हाँ बहरैनी, अल बहरैनी, ये ये इसमें भी आ सकता है ना, मुस्लिमातिन के इसमें आ सकता है ना, नहीं ये नहीं नसब या जर तस्निया तीनों ही है, टू, यानी हाँ मुस्लिमैनी की तरह है ना, हाँ बहरैनी, मुस्लिमातैनी, हाँ मुस्लिमैनी ना, ता नहीं है इसमें, हाँ मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, तो मुस्लिमैनी की तरह। बरज़खुन, ये रफा 2 पेश, हाँ ये रफा है, वन है, वाहिद रफा नंबर 1, हाँ नंबर नंबर 1। अल मुजरिमून,
जमा المجرمون रफा थ्री रफा थ्री रफाई वल मरजानु ये वाहिद है ये वाहिद मगर है नहीं अल लगा है ना इसमें। ये टू थर्ड रफा है है, ये थर्ड टू रफा तो नहीं है टू रफा है। अगर टू होगा तो एंड पे आ नहीं आना चाहिए ना, ये हाँ नहीं ये नहीं। नहीं ये हाँ ये थर्ड लग रहा है मुझे थर्ड अगर थर्ड थर्ड नसब होता तो अगर थर्ड होता तो ऊना और ईना होना था ना, तो ये तो अच्छा जानू पेश है, ठीक है ना, तो ये पेश है। रफा है तो ये इसका मतलब है कि एंडिंग थ्री साउंड नहीं, रफा ये एंडिंग थ्री रफा है। हाँ जी, ये कॉम्बिनेशन नहीं है, ये ये नहीं कॉम्बिनेशन है नहीं। हाँ ये तो तो सिर्फ आपने ये देखना है आपके पेश है कि क्या है। रफा, वन सही रफा, हाँ मर जानू। अगर मर ये जान अगर ये थ्री होते तो मर जा नू ना होना था ना, ऊना एंड पे लगाना पड़ना था आपको इसके। ये अलिफ नून वर्ड का पार्ट है, कई दफा क्या होता है वर्ड का पार्ट सुल्तान, सुल्तान, ये सुल्तानी भी हो सकता है, इसीलिए आनी नहीं है, ये वाला सुल्तानी वन क्या रोक इसमें, क्योंकि अलिफ नून जो है ना वर्ड का पार्ट है। और उर्दू की वजह से ना हमें काफी चीजें इस तरह की वैसी पता चल जाती हैं कि क्योंकि वर्ड जो होते हैं ना, नमाज पढ़ी पूछा तो नमाज पढ़ी अस्सॉलिहाती, सालिहात ये जर है जर है और हाँ नंबर 2 वाला लग रहा है नहीं जमा का वो है जमा जर है और हर नसब या जर हाँ नसब जर दोनों है ये हाँ, हाँ दोनों, तो ये नसब और दोनों जर। है हाँ तो ये एग्जांपल्स जो थे ना, थ्री ये थोड़ी सी, हाँ जी थ्री, ये थ्री हाँ का जी है ये तो थ्री ये है तो ना, ये जेर है ना ये ये मुस्लिम मुस्लिमातिन की तरह है ना, अच्छा मुस्लिमातिन। और जेर एक एक क्यों है, क्योंकि अल लगा हुआ है शुरू में, अल अच्छा लग जाए तो फिर क्या इकट्ठे होता नहीं हो है, सकते एक जेर तनवीन खत्म हट करने, जाती है हाँ जी, अच्छा तो मुस्लिमाती करना पड़ता है। तो ये हमने अभी तक ये किया ना, तो अब जो मैंने एक्सरसाइज आपको भेजी है ना, तो अब आप उसको करना है। तो कल जब क्लास शुरू हो ना, तो आप पहले उसको कर लें पेपर पे या कहीं भी, तो फिर हम इंशाल्लाह जब इधर हम उसको रिवाइज करेंगे ना जब, तो फिर आप उसमें से मार्क करेंगे कितने ठीक हैं कितने गलत हैं। तो उससे इसी एक्सरसाइज से आपको फायदा हो जाएगा कि वो हमने करनी कैसे एक्सरसाइज का वो 36 टोटल है। तो ये चार्ट तो आपके माशाल्लाह काफी अच्छे हो गए हैं, आप समझ आनी शुरू हो गई है। तो ये चीजें सारी ना आगे जाके यूज करनी है हमने, इसलिए हम इस पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और स्टेटस पे ही सबसे ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है, क्योंकि ये सबसे मुश्किल ही यही है सब में। तो अब हमने क्या किया अभी तक, जो हमने कंप्लीट कर लिया है ना, तो हमने कहा था ना कि 4 प्रॉपर्टीज होती हैं इसम की, स्टेटस, जेंडर, नंबर और टाइप। तो अभी हम स्टेटस को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और स्टेटस में मैंने कहा था 4 चीजें हमने पढ़नी है। पहली क्या थी कि रफा नसब हाँ जी, रफा, नसब और जर। सब और होता जर क्या है? रफा होता है, नसब होता है और और जर जर होता है और रफा किस लिए होता है, डुअर होता है, नसब जो होता है वो डिटेल होता है, और जर होता है वो साथ ही ओनरशिप और दूसरी स्टडी थी कि बताना कैसे है कि अगर हमें तर्जुमा नहीं आता है वर्ड का, राइट, तो हमें देख के कैसे बताना है। तो वो 2 था, वो भी हमने आज कंप्लीट कर लिया है कि हमें एंडिंग साउंड से बताना होता है या एंडिंग कॉम्बिनेशन होता है, साउंड या कॉम्बिनेशन। तो इसको कहते हैं हाउ टू टेल, के कैसे बताना है, हमें पता कैसे चलेगा कि स्टेटस क्या है बगैर तर्जमे के। तो ये 2 हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब तीसरी और चौथी हम दोबारा नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो लेकिन कल हम सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करेंगे, जो मैंने शीट आपको दी हुई है ना, उसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। और थर्ड जो है ना, हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे इसका, तीसरा और चौथा, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट। तो अब एक और चीज है जो थोड़ी सी हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि वो कंफ्यूज करती है कई दफा। अब मुस्लिम उन चार्ट की तरह ना, अब हम किसी का भी चार्ट बना सकते हैं ना। देखें, अब हमारा वर्ड है रसूल, ठीक है ना। अब रसूल का चार्ट बनाना है हमने, तो क्या बनाएंगे हम, रसूलुन रसूलन रसूलन रसूलिन रसूलिन रसूलन रसूलिन हाँ रसूलानी रसूलन
रसूलैनी रसूलन रसूलैनी रसूलैनी रसूल रसूलूना या रसूलानी रसूल वो तो रसूल जमा मुकस्सर है ये रसूल रसूलानी रसूलैनी, राइट, रसूलैनी और रसूलैनी रसूलैनी हाँ और बेटा दे लेंगे रसूलैनी। लैनी रसूलूना रसूलूना रसूल 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 होता है रसूलूना, अगर हम वो पैटर्न पे रसूलूना चले ना, हाँ पैटर्न पे अगर रस चले ना हम, तो रसूलूना, ठीक है, हाँ क्योंकि हमने कहा फिर था कि थर्ड वाला अगर ऊना की साउंड हो तो वो पर्सन्स के लिए होता है ना, पीपल के लिए। तो रसूल एक पर्सन ही है ना, तो उसका इस तरह से हम प्लूरल बनेगा, रसूलूना, रसूल रसूलीना लेलीना और रसूलीना। रुलीना ठीक है, तो ये तो स्टैंडर्ड चार्ट है ना। लेकिन कई दफा होता है कि जो 3 वाला जो होता है ना नंबर, उसके लिए कोई एक और वर्ड भी अरब ने बनाया होता है, जैसे कि रुसुल। ठीक है ना, किसी ने कहा था ना रुसुल भी तो हो सकता है ना, रुसुल। तो इसका फिर अगर 3 वाला होना, जो एक और प्लूरल होता है, इसको जमा तकबीर कहते हैं। तो इसमें रुसुल, इसका प्लूरल उसी तरह इसका प्लूरल सिंगुलर की तरह ही बनेगा, रफा रुसुलन होगा, रुसुलन होगा और रुसुलिन होगा। तो देखने में हम इसको, अगर इस तरह का आता है ना जमा, तो देखने में हमें नहीं पता चलेगा, अगर हमें तर्जमा नहीं आता तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये प्लूरल है। तो इस तरह के प्लूरल के लिए ना आपको ट्रांसलेशन आनी जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, वो सिंगुलर लगेंगे, नहीं तो वो लगेगा वन है। ठीक है, तो इस तरह के भी काफी सारे हैं, जैसे काफिरून का एक और वर्ड भी यूज होता है। कौन सा वर्ड है काफिरून के प्लूरल के लिए? कुफार कुफार, राइट। तो कुफारुन होगा, कुफारन होगा, कुफारिन होगा। ये उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं इस तरह के काफी सारे ना। तो ये काफिरूना भी हो सकता है और कुफार भी हो सकता है, दोनों वर्ड कुरान में यूज होते हैं। रसूल, रसूलीना, रसूलूना भी कहीं यूज होता है, रसूल ज्यादा यूज होता है। दोनों का मतलब एक है, मतलब एक काफिरूना ही है, हाँ और जी, कुफार इज द सेम, मीनिंग इज सेम द सेम। मीनिंग इज सेम, हाँ जी, मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, जस्ट वर्ड इज डिफरेंट। और उसमें यूज करने में फिर ग्रामेटिकली फर्क पड़ता है कि हमने उसको कैसे यूज करते हैं, लेकिन मीनिंग सेम है। इसी तरह ये तो हो गए ना, ये पर्सन्स थे। इस तरह नॉन पर्सन्स में भी ऐसे होता है, जैसे किताब, किताब बुन, किताबन बनेगा, और किताब बिन। और दो होगी, दो में कोई डिफरेंस नहीं होता, दो चाहे पर्सन हो नॉन पर्सन हो, तो आपने आनी ही लगाना है, किताब आनी, किताब किताबानी किताबैनी किताबैनी बैनी, الذي لا يضر مع और اللطيف किताब। ولا في السماء هو السميع العليم किताब बैनी, अब हमने कहा था ना किताब बूना, नहीं, किताब बूना बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता मगर कुतुब होता है। नहीं, किताब बूना क्यों बन सकता है? हमने एक डेफिनेशन में बताया था कि अगर नहीं ऊना वो लगा हो हाँ तो वो वो, इंसान नहीं है ना, वो हाँ नहीं हो जी, सकता। पर्सन नहीं है ना, तो हाँ किताब पर्सन बूना नहीं बन ही नहीं सकता इसका। तो इसके लिए उन्हें एक और वर्ड अरब को निकालना पड़ेगा ना, कुछ और यूज करना पड़ेगा। तो कई दफा वो आतुन वाले वर्ड यूज करते हैं, जैसे आया, आया अगर, राइट, आयातुन। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, वो आयातुन, आतुन लगाएंगे। या तो ये करेंगे नॉन पर्सन्स के साथ, या फिर एक डिफरेंट वर्ड होगा, जैसे क्या होता है, फीहा कुतुबुन कय्यिमा, कुतुबन यूज होता है ना, कुतुबुन तो ये कुतुबुन का सब क्या होगा, अलिफ लगाना पड़ता है हमें एंड पे, और फिर कुतुब। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें प्लूरल में हमने इस तरह से भी हो सकता है। अभी हम इसको और स्टडी करेंगे जब हम आगे जाएंगे ना जेंडर्स में और नंबर्स में, नंबर और जेंडर को जब पढ़ेंगे इस समय, तो इसका फिर और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी सिर्फ आपको ये बताना था कि 3 प्लूरल जो होता है ना, जमा जिसको कहते हैं, उर्दू और इंग्लिश का जमा तो होता है ना 2 या 2 से ज्यादा, यानी 1 से ज्यादा हो तो वो जमा बन जाता है। लेकिन अरबी का जमा क्या होता है, और अरबिक का 3 और 3 से ज्यादा। 3 या 3 से ज्यादा। और दो
दो का रूल सेम है सबके लिए, चाहे वो नॉन पर्सन हो पर्सन हो, दो वो इसी तरह बनाएंगे। जैसे आई नुन आंख को कहते हैं या चश्मे को भी कहते हैं ना, तो इसका अगर हमने टू बनाना है रफा में तो क्या बनाएंगे, आईनानी। जैसे फीहिमा आईनानी तजरियान, यहाँ सूरह रहमान में आता है, तो आईनानी। तो इस तरह डुअल इसी तरह बनेगा, किताबानी बन जाएगा, मस्जिद होगा तो मस्जिदानी बना देंगे हम। लेकिन जिस इस तरह मस्जिद का भी ऐसी है ना, मस्जिद दो के लिए क्या करेंगे, मस्जिदानी, और प्लूरल लेकिन इसका डिफरेंट होगा, क्या होगा प्लूरल वो। मसाजिद। हम उर्दू में है ना तो हमें बहुत फायदा है, इंग्लिश वालों को ये चीजें नहीं आती। हम्म, ये उर्दू वालों का ये फायदा है कि हमें पता चल जाता है कि प्लूरल क्या होगा, क्योंकि काफी सारे वर्ड जो है ना वो हमारे इस्तेमाल होते हैं उर्दू में, तो मसाजिद के नाम मसाजिद होता है। तो मस्जिद मस्जिदानी मसाजिद, मसाजिद मसाजिदुन मसाजिदन मसाजिदन। तो ये चीजें थी इसमें एडिशनल। तो कल इंशाल्लाह हम करेंगे उसका, जो हमने प्रैक्टिस दी हुई ना आपको, सिर्फ उसी को रिव्यू करेंगे कल। और हमाद भाई, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई इसके लिए आपने एक टर्म भी यूज की है, इस जमा के लिए क्या टर्म वो यूज की है? वो अभी इसलिए नहीं मैं बता रहा था कि वो बाद में आएगी, लेकिन वो जमा नहीं नहीं, तकबीर आपने बोला है अभी जमा कि बोला इस तो है, जमा को लेकिन यूज वो करते हैं। सिखाना मकसद नहीं था उसको ना, जमा तकबीर अच्छा, उसको। जमा जमा, मुकस्सर भी कहते हैं? मेरा ख्याल है वो भी शायद कहते हैं, हाँ। नहीं, ब्रोकन प्लूरल किसे कहते हैं? हाँ जी, ब्रोकन प्लूरल इंग्लिश में कहते हैं इसको, ब्रोकन प्लूरल। जमा तकबीर भी कहते हैं, ब्रोकन प्लूरल भी कहते हैं। तो ये हम जब इसका नंबर पढ़ेंगे ना तो उसमें ये सारे हम डिफरेंट किस्म के प्लूरल्स हम स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए, आज के लिए जो है ना, ये इतना ही था कि एडिशनल के प्लूरल जो होते हैं ज़हन में रखना है कि देखने में वो लगेंगे आपको कि सिंगुलर है, लेकिन एक्चुअली प्लूरल होगा वो। तो जब मीनिंग हमें करनी है तो, लेकिन इसका पता नहीं चल सकता अनलेस आपको मीनिंग ना आता। अगर मीनिंग नहीं आता ना तो हम यही समझेंगे कि ये सिंगुलर है, वन रफा है या नसब है या जर है। मीनिंग आना इसके लिए जरूरी है, तो उसको वो आहिस्ता आहिस्ता वोकैबलरी जब हमें आती है ना तो फिर हमें मीनिंग्स का पता चलना शुरू हो जाता है, फिर हमें सारे प्लूरल पता चल जाते हैं। तो इंशाल्लाह कल जो है हम वो एक्सरसाइज करेंगे, और उसके बाद आप जो वीकेंड होगा उसमें आप प्रैक्टिस करें बस इसी की। फिर हम एक थोड़ा सा अगला एक एक चीज रहती है, मैंने बताया था ना कि हमने कंप्लीट नहीं किया अभी इसमें ना, नंबर 2 में एक चीज और रहती है, वो अभी हम करेंगे अभी। और अलिफ लाम नहीं, अलिफ लाम तो बता दें, नहीं पूरा हो गया ये, अलिफ लाम भी हो गया ना। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा नंबर 2। अब नंबर 3 और नंबर 4 रह जाएगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक होगा। कल हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद मैं आपको कुछ और प्रैक्टिस वर्ड्स भी दूंगा, उसके आप चार्ट्स रिवाइज जस्ट करें इंशाल्लाह। जाकुमुल्लाह खैरन। चले दुआ कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ्फार या रब्बल आलमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना। रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान
أن آمنوا بربكم ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا اشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فهي الى الاسلام من توفاه منا فتوفاه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم يا شافي الأمراض اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفي أنت شافي لا يكشف الضر إلا أنت رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمین يا رب العالمين جزاک اللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.